God's promise of eternal glory. अनंत परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत महिमा के लिए। In Daniel chapter 12 verses 3, it says, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, those who lead many to righteousness जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं will shine like the वे stars तारों के समान चमकेंगे forever. सदैव सदा के लिए। Amen. So, what does this mean? इसका मतलब क्या है? We will all be shining like stars in इसका heaven. मतलब ये है कि हम सब लोग स्वर्ग में तारों के समान चमकेंगे। Each and every one of us is like one star, or 1,000 stars. हम सब एक एक तारे के जैसे हैं, But we should preach the gospel लेकिन इसके लिए हमें सुसमाचार सुनाना होगा to have more stars in heaven. और अगर ताकि और भी तारे चमके स्वर्ग में। So each and every soul is like a star. हर एक आत्मा एक तारे के समान है। So what we need to do, तो हमें क्या करना है? we need to go out हमें बाहर जाना है and make disciples. और चेला बनाना है। We need to make more stars. We need to collect stars for heaven. हमें और तारों को तैयार करना है। We all buy beautiful lights in our houses to make it bright. हम सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे लाइट्स डालते हैं ताकि वहाँ पे रोशनी रहे। We buy a lot of stuff to make it beautiful. बहुत सारी चीज़ें सजावट हम सजाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। But what are we doing for our heavenly house? लेकिन हम अपने स्वर्गीय घर के लिए हम क्या कर रहे हैं? Are we making enough stars? क्या हम तारों को तैयार कर रहे हैं वहाँ के लिए? It's a good question to reflect on, right? ये बहुत अच्छा सवाल है जिस पर हम सोच सकते हैं। So keep this promise in your mind, saying that, those who lead many to righteousness तो ये will प्रतिज्ञा shine. आप अपने मन में रखो will shine like stars forever. कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों के समान चमकेंगे सदा के लिए। Coming to my last point. और आखिरी बात की ओर मैं बढ़ता हूँ। So what do we need to do as Christians? तो हमें एक क्रिस्ती होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? We need to have faith हमारे अंदर विश्वास होना है and we need to have action. और उसके अनुसार हमें चलना है, कार्य करना है। Faith without action is dead. जो अविश्वास है और कार्य नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है। It's crystal clear and it's written in James chapter 2 verses 17. याकूब 2 अध्याय और 17 वचन में लिखा है। So now we all know the story of Peter, right? हम सब पतरस की कहानी जानते हैं। So, Peter was that guy in the Bible who took action. अब पतरस एक ऐसा व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति था पवित्र शास्त्र में। He was not a person on the boat just cheering for Jesus. Yay, Jesus, you walked on water. Very nice. वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि सिर्फ बोट पे रह के वो यीशु मसीह को उत्साहित करे कि पानी पर चलने के लिए। He wasn't like that. वो ऐसा नहीं था। What did Peter do? He stepped out. He took action. पतरस ने क्या किया? वो बाहर निकला नाव से, उसने कार्य किया। He took the action to follow Jesus. उसने कार्य किया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए And moreover, to walk on the water. पानी पे चलने के लिए। Probably the others were scared, हो सकता है कि दूसरे चेले शायद घबरा गए होंगे। Of course, everyone was scared, but this Peter guy was, he was Peter. वो सब लोग डरे हुए थे लेकिन पतरस ने साहस किया। So, what did Jesus say after that? So, Peter asked God, if it's really you, tell me to, come on the water, that we read in. पतरस ने कहा कि प्रभु यदि सचमुच तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। And what Jesus said? और Come. यीशु ने क्या कहा? आ जाओ। So, that's when Peter took an action to have faith in God. और वही समय था कि पतरस ने अपने विश्वास के अनुसार उसने कार्य किया। Faith is not a comfortable thing.
और विश्वास एक बहुत आरामप्रद चीज नहीं है, but it is a courageous thing what we do. अब लेकिन वो एक साहसपूर्ण वो एक बात है। Amen. So we see God's promises in the book of the Bible. You know, they are living, they are breathing, and they are everlasting and eternal truths. हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो वचन में लिखी हुई है वो जीवित है और वो अनंत काल के लिए है। He says, I will help you, वो कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, I will strengthen you, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, I will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। And God means every word. और जो कुछ वो बोलता है सचमुच में वो अपने दिल से कहता है, He's not a liar. वो झूठा नहीं है। He means every single word what is written in the word. जो उसने कहा है, जो लिखा हुआ है, हर एक बात सच है। So what we need to do, we should not only read the promises, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ प्रतिज्ञाओं को पढ़ना नहीं है, we should act like it is already done. तो हमें ऐसा कार्य करना है कि जैसे कि वो हमारे जीवन में पूरा हो चुकी है प्रतिज्ञा। Amen.